training in extension in art, but he developed a highly imaginative and spontaneous visual vocabulary enhanced by his sound understanding of visual practices such as modern, western, primitive, and child art. Beginning as a subconscious process where doodles and erasures in his life manuscripts assumed some form, Tagore gradually produced a variety of images including fantasized masks, mysterious human faces, mystic landscapes, birds, and flowers. His work displays a great sense of fantasy, rhythm, and vitality. A powerful imagination added an inexplicable strangeness to his work that is sometimes experienced as eerie or evocative. Tagore celebrated a creative freedom in his technique. He never hesitated to draw and smear the colored ink on paper to give his life to his art, to his disquieting range of subjects. His drawings and ink paintings are freely executed with brush, rag, cotton wool, and even with his fingers. For Tagore, art was a bridge that connected the individual with the world. As a modernist, Tagore completely belonged to the world of his time, particularly in the realm of art. Thank you and have a great day. थैंक यू वैशाली। इसके बाद जैसे आपने सभी ने बताया, इन्होंने वैशाली और मीका ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन कौन सी कृतियाँ थी जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ में मिल चुका है। उन्हीं में से एक है गीतांजलि, जो बुक आप सामने देख रहे हो। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कोटेशन यहाँ लगी हैं, जैसे एक आप पढ़ सकते हो, क्लाउड्स कम फ्लोटिंग इनटू माय लाइफ, नो लॉन्गर टू कैरी रेन और अस्ट स्टॉर्म बट टू एड कलर्स टू माय सनसेट स्काई। तो आप इस कोटेशन से ही देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड उनका था। वो कहते हैं कि क्लाउड्स कम इनटू माय लाइफ, क्लाउड्स आते हैं बट कई बार वो बारिश नहीं करते हैं, ठीक है, बट स्टिल दे ऐड कलर टू सनसेट स्काई, ठीक है। तो ऐसा ही मैं उम्मीद करूंगी कि यही पॉजिटिव एटीट्यूड आप सब भी अपने लाइफ में अपनाएं। इसके बाद हमने एक छोटी सी पॉइंट डिस्कशन कंपटीशन रखी है, दैट इज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो उसी की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस पॉइंट डिस्कशन के जो जजेस हैं आज, वो है श्री बीजेटी पीजीटी इंग्लिश, Miss Madhu, PGT Hindi. Yes, and all my dear friends. Today I, Sir Kumar of class 8, is going to recite a poem. The title of my poem is I Am Restless. I am restless. I am athirst for far many things. My soul goes out in a longing to touch the skirt of the dim distance. O great beyond, O the keen call of the flute. O great beyond, O the keen call of the flute. I ever forget that I do not have the wings to fly, that I born and is ever Lord. I am eager and wakeful. I am a stranger in this strange land. Thy breath to us, whispering an impossible hope. Thy tongue is known to my heart as this very own. Oh, far to see, oh, the keen call of the flute. I ever forget that I know not the path, that I do not have the winged horse. I am listless. I am a wanderer in my heart. In the sunny haze of the languid hours, what vast vision of thin shape of the blue in the sky. O farthest end, O the keen call of the flute. O farthest end, O the keen call of the flute. I ever forget that the gates are shut everywhere in the house where I dwell alone. Thank you. भोर का रंगा हुआ आकाश कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भोर का रंगा हुआ आकाश, भोर का रंगा हुआ आकाश हुआ है पर मेरा सुंदर। आज जाने की बेला में करो जय ध्वनि तुम सब मिलकर, करो इस बार साथ लेकर क्या जाओगे, ना इसकी कोई चिंता करो। हाथ खाली ही मेरा नहीं, साथ में बस व्याकुल अंतर। आज ही नहीं पथिक का वेश मिलन माला भर पहनी है। विघ्न बाधाओं से क्या डर, मुझे हर पीड़ा सहनी है। अंत जब होगा यात्रा का, सांधे तारे की होगी चमक, करुण वंशी के सुर होंगे, ना होगी कोई कहीं अटक। धन्यवाद। से आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मेरे प्रभु हो रहो चाहे ह मेरी। तुम मेरे प्रभु हो रहो चाहे ह मेरी, इस राह बराबर मेरे कृपा की ढेरी। जहाँ दिशे तुमको ही देखूं, तुम
तुमको चाहूं, निशिदिन तुमको ही ढूंढूं, सब कुछ मांगूं, इस चाह बराबर मिले कृपा की ढेरी। तुम मेरे प्रभु हो, रहो चाह यह मेरी, तुम रहो ना ओझल, रहो पास में मेरे, बस इसी चाह में रहूं, नित्य दूं फेरे। देखें ये लीला प्राण तुम्हारी जग में, इतनी इच्छा होती है पग पग में। ले घेर मुझे तेरी बाहों का बंधन, बस इतना ही तो चाह रहा है यह मन। उस बंधन में बंध रहूं, कृपा हो तेरी, तुम मेरे प्रभु हो, रहो चाह यह मेरी। धन्यवाद। गीता राणावत आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। उस कविता का शीर्षक है मग्न मंदिर के अरे ओ देवता। मग्न मंदिर के अरे ओ देवता, अब न होती आरती, नहीं बजता शंख, सांध्य नभ में अब न उड़ती वे अरे सुरपंख, छिन्न वीणा तार, वंदना है मौन। उठते जो सुमन अब न चढ़ते यहाँ, उठते जो सुमन अब न चढ़ते यहाँ। दूर से लाता वसंती पवन गंध भर उनकी, दूर से लाता वसंती पवन गंध भर उनकी। मग्न मंदिर में तुम ही स्थिर, अन्यथा अब कहाँ कोई जन यहाँ आते और अपना अधर्य यहाँ आकर चढ़ाते। अन्यथा अब कहाँ कोई जन यहाँ आते और अपना अधर्य यहाँ आकर चढ़ाते। पुजारी तेरा दिवस भर बिना पूजा काज घूमता फिरता भिखारी सा, कि पा जाए कहीं पुष्प और प्रसाद। सांझ बीते लौट आता पर पुजारी वह, तुम्हारा मग्न मंदिर में लिए अवसाद। बनी कितनी मूर्तियां इस बीच, विसर्जित भी हुए उत्सव कई आयोजन, हुए जय घोष, किंतु पूजन और आराधन न तेरा हुआ, किंतु पूजन और आराधन न तेरा हुआ। मग्न मंदिर के लक्षित देवता, नहीं ही आए किसी को अरे तेरी याद। धन्यवाद।